Hello students, welcome back to second video lectures of Unit 1 Chapter 4 Operating Systems. Students, in this chapter we had also taught about some more topics like introductions of operating systems and what is operating system. In operating system we had also discussed about booting, kernel, file systems and types of operating systems. In types of operating systems, a single user and single task operating system, multi-user operating system, multi-processing operating system, time-sharing operating system, real-time operating systems, distributed operating systems, and interactive operating systems. And also discuss about functions of an operating system like input-output operations, handling file systems, executions of a program, detections of error, information and resources protection. So students, today we will start a new topic in this chapter. So let's start. What is the new topic this session? So let's go to next slide, and here you will see that today the first topic is role of an operating system. What is the role of an operating system? So according to role of operating system, it can also be categorized under the following three categories, three headings आप कह सकते हो. Okay, you will say three headings in role of an operating system. First, operating system as a resource manager. Second, operating system as a processor manager. Third, operating system as information manager. So we will discuss one by one. The first heading is operating system as resource manager. So let's start. As you have already discussed, a computer cannot function without an operating system. All operating systems perform certain basic functions. The operating system manages programs, memory, input and output devices like interpreters, commands, etc. These operating systems as a resource managers perform the following functions like the single tasking operating systems are able to run on one application program at one time. Any user who is required to work with many applications at one time faces a great difficulty. Thus, in order to switch program in a single tasking operating system, the user has to quit one program and start working on the second program. स्टूडेंट मीन्स जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पहले ही कि जो आपका हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो भी उसके फंक्शन जो भी वर्क करते हैं, मतलब कंप्यूटर्स के जो भी फंक्शन वर्क करते हैं वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं कर सकता है. उसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं, आप चाहे इनपुट कर रहे हो चाहे आप आउटपुट कर रहे हो, या जितने भी आपके मेमोरीज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी रन कराते हो आप प्रोसेसिंग के लिए, ये सब सारे फंक्शंस क्या होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड बेस्ड पे होते हैं, हर एक चीज आपका, ठीक है. तो उसी पे ही कई सारे फंक्शंस आपके जो हैं उसके इसमें आपके रिसोर्स मैनेजर में कि ये फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिफरेंट है. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अगर एक तरह से पहले क्या होता है सिंगल टास्क भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि इसमें उस सिंगल टास्क परफॉर्म करने में भी कई सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो आप ये क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसॉल्व करता है, ठीक है. और ये सिंगल टास्क भी परफॉर्म करता है एंड मल्टी टास्क भी परफॉर्म करता है. तो फिलहाल हम बात करें सिंगल टास्क में. तो जब ये सिंगल टास्क परफॉर्म करता है तो आप जैसे ही एक सिंगल टास्क खत्म होता है तो आप दूसरा टास्क वो स्टार्ट कर देता है तुरंत, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टास्क एक साथ देते हो तो एक साथ सभी को नहीं टास्क पूरा कंप्लीट करता प्रोसेसिंग को. पहले एक जो पहले मिलता है उसको पहले खत्म करता है एंड जो बाद में मिलता है उसको फिर उसके बाद वन बाय वन करके ये क्या लगता है टास्क लेता है और उसको उसकी रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग उसकी कंप्लीट करता है.
फिर अगर हम सेकंड फंक्शन की इसकी बात करेंगे तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कंप्यूटर्स मेमोरी, इट एलोकेट्स द मेन मेमोरी एंड अदर स्टोरेज एरियाज टू द सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक तरह का मतलब कि एक मेमोरी को मैनेज करता है, इट एलोकेट्स द मेन मेमोरी या मेन मेमोरी को एलोकेट करता है, और अगर उसके अदर स्टोरेज एरियाज है, अगर किसी प्रोग्राम को स्टोरेज करने के लिए तो उनको भी ये मैनेज करने का काम करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजर प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट मेमोरी स्पेस सो दैट सेवरल प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपकी मेमोरी मैनेजर में आपको सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी जो भी प्रोग्राम की प्रोसेसिंग है वो आसानी से प्रोसेस हो सके। It provides a satisfactory level of performance। मीन्स मैंने बताया कि ये क्या करता है कि आपको एक कैसे परफॉर्म करता है जिससे कि आप सेटिस्फाई होते हो। ठीक है, एक ऐसी फैसला कि उस मेमोरी में इतनी स्पेस आपको देता है कि आप आसानी से उस प्रोग्राम की जो भी प्रोसेसिंग हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर सके। फिर अगर हम थर्ड की पार्ट की बात करेंगे रिसोर्स मैनेजर में, थर्ड फंक्शन की द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर दैट ईच प्रोसेस रनिंग इन अ सिस्टम डज नॉट इंटरफेस with the code or data of any other process either accidentally or deliberately। मीन्स ये आपको मतलब श्योर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हो हर एक प्रोग्राम की सिस्टम पर, तो ये देखता है कि हर एक प्रोग्राम क्या हो आपस में डिलिबरेट ना हो, ठीक है, एक्सीडेंटली ना हो। मीन्स एक 1 बाय 1 ही करता है, ठीक है, एक साथ सब प्रोग्राम को नहीं करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म करने के लिए देते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर्स को, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कई सारे प्रोग्राम को एक साथ नहीं करता है, अगर एक साथ करेगा उसमें गड़बड़ियां हो जाती हैं, इसलिए वो एक साथ नहीं करता, 1 बाय 1 प्रोग्राम्स को लेता है और उनकी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है। फिर अगर हम फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ फंक्शंस की, तो फोर्थ फंक्शन में एन ऑपरेटिंग सिस्टम has the ability to interrupt commands and the function instructions given to it। मीन्स आपके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उसमें कई सारे कमांड्स पे इंटरप्ट होते हैं, और उस कमांड के थ्रू मतलब जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हो वही सब कमांड आपके होते हैं, उन्हीं कमांड के थ्रू ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिफ्थ फंक्शन की, तो फिफ्थ फंक्शन है क्या स्टूडेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स द मेन मशीन इंस्ट्रक्शंस इजियर एंड मोर इफेक्टिव। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आपका मेन मशीन होता है, मीन्स आदमी के द्वारा मीन्स मनुष्य के द्वारा जो डेवलप किया जाता है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि आपके लिए मोर इफेक्टिव मीन्स बनाई जाती है, जिससे कि आपके काम जो भी वर्क आप कर रहे हो वो इजी हो जाए और बहुत ही सुटेबल हो जाए। अगर हम 6 की बात करेंगे, वेन एवर एन एरर इज इनकाउंटर्ड बाय द कंप्यूटर, अगर कोई उसे मैसेज काउंट होता है आपके कंप्यूटर के द्वारा एरर मैसेज, तो एन एरर इज फ्लैश ऑन द स्क्रीन, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आपके स्क्रीन पर वो शो हो जाता है। एंड 6 जो आपके फंक्शन है, इट हैज द एबिलिटी टू मैनेज एंड मैनिपुलेट फाइल प्रेजेंट एंड वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस। मीन्स आपके जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जितने भी आप वर्क देते हो कंप्यूटर्स को, वो सब क्या करते हैं स्टोरेज के जहाँ पे वो स्टोर करता है वहां पर उसे मैनेज भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हर एक प्रोग्राम को कैसे हम 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हम कैसे वहां पे स्टोरेज कर सकते हैं, उनको कैसे शेड्यूल करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेल्फ करता है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, द टेक्स्ट एडिटर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू मॉडिफाई फाइल इजीली। मीन्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्स्ट एडिटर की भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आप कोई भी फाइल्स में कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो उस फाइल में तो आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is the second topic, operating system as a processor manager। तो processor management components of operating system organize the execution of a user job। मीन्स ये जो आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, जो इसके कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से, ये आपको जितने भी आपके जो भी यूजर द्वारा जॉब ऑर्गेनाइज किया जाता है उनको मैनेज करता है कि कैसे ये जो भी आपके वर्क हो रहे हैं वो किस तरह से वर्क करे, ठीक है, और जो भी सीपीयू के द्वारा वर्क हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, वो कैसे होंगे उनके द्वारा। तो इसके कई आपके 3 लेवल्स में इनको डिवाइड किया गया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एज अ प्रोसेसर मैनेजर में, जिसमें पहला आपका था फर्स्ट आपका है जॉब शेड्यूलिंग,
जॉब को शेड्यूल करना, ठीक है। फिर जो सेकंड आपका है प्रोग्राम इनिशिएशन, एंड थर्ड आपका है प्रोसेस शेड्यूलिंग, थर्ड आपका है प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये आपके 3 तरह की प्रोसेसिंग करता है आपका प्रोसेसर मैनेजर। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं जॉब शेड्यूलिंग में, कि जैसा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आपके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप परफॉर्म मतलब कि आपको यूजर्स को इंस्ट्रक्शन देते हो, कमांड देते हो, तो अगर आप जितनी भी फाइल्स मल्टीपल फाइल्स आप अगर इसे देते हो आप करने के लिए, तो ये तो सभी फाइल्स को तो एक्सेप्ट करता है, एज ए स्टोरेज पर्पज में वो स्टोर कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है कि आपके हर एक फाइल्स को लेता है और 1 बाय 1 परफॉर्म करता है। जो पहला फाइल्स आता है उसको पहले एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद जब वो पहले और एक्सेप्ट करने के बाद उसको पहले प्रोसेसिंग करता है और उसे कंप्लीट करता है। फिर जैसे ही फर्स्ट स्टेप पर कंप्लीट होता है उसके बाद जो सेकंड होती है उसको फाइल्स को उठाता है। मीन्स जैसे से आप इंस्ट्रक्शन देते हो उसके बाद वैसे वैसे वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है कमांड के थ्रू और वो अपनी प्रोसेसिंग करता है। जैसे मैंने जैसे बताया आपको जॉब शेड्यूलिंग में कि जॉब शेड्यूलिंग डिटरमाइंस द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस जॉब। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर स्पेशल लैंग्वेज सच एज द जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। मीन्स जो जॉब शेड्यूलिंग होती है ये हर एक की जो भी आपके वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब होते हैं उनको टाइम शेयरिंग में उसे हर एक को टाइम देता है, अलग अलग टाइम, हर एक की इक्वली टाइम होती है। जैसे जैसे मतलब कि हर एक का टाइम डिक्लेयर कर देता है कि इतने में इतने होगा, ये टास्क पूरा कंप्लीट करना है उसे। और इसके लिए स्पेशल लैंग्वेज मतलब कि जब बनाई जाती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं JCL मीन्स जॉब कंट्रोल और लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं। इस लैंग्वेज के थ्रू क्या होती है कि जो भी यूजर को जॉब दिए तो उनको कंट्रोल करना काम होता है और किस लैंग्वेज दिया उस चीज को उसे समझना होता है, अंडरस्टूड करना होता है। फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस जॉब सिक्वेंसली वन आफ्टर द अदर, मैंने जैसे बताया कि आपको क्या होता है कि इसमें जो भी आपके जॉब्स होते हैं, जो भी आप प्रोसेसिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो वो क्या होता है एक शेड्यूल के थ्रू होता है, 1 बाय 1 होता है आपका, वन आफ्टर अदर होता है आपका। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जॉब शेड्यूलिंग कैसे कैसे होती है, इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। जॉब शेड्यूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मीन्स सर्विसेज। मीन्स जो पहले आएगा वो पहले सर्व किया जाएगा, मीन्स पहले उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग पहले होगी। जॉब शेड्यूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट क्राइटेरिया मीन्स जॉब शेड्यूलिंग जो होती है शॉर्टेस्ट जॉब पे बेसिस होती है ताकि तेजी से वो वर्क कर सके। जॉब शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग द यूजर स्पेसिफाइड प्रायोरिटी मीन्स जो यूजर की प्रायोरिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसकी स्पेसिफाइड प्रायोरिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो शेड्यूलिंग करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जॉब शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू द यूजर स्पेसिफाइड डेडलाइन फॉर फिनिशिंग अ जॉब मीन्स हर एक जॉब जो भी शेड्यूलिंग की जाती है, जो भी आप वर्क देते हो उसकी भी क्या होती है एक डेडलाइन होती है ताकि वो वर्क कितनी तेजी से वो वर्क कंप्लीट कर सके, फिनिश कर सके। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रोग्राम इनिशिएशन की, तो प्रोग्राम इनिशिएशन होता है क्या स्टूडेंट्स। प्रोग्राम इनिशिएशन डिटरमाइन द टाइम एंड द मेथड इनिशिएट प्रोसेसिंग ऑफ नेक्स्ट जॉब स्टेप। मीन्स कि प्रोग्राम इनिशिएशन ये डिटरमाइन करता है कि आपके द्वारा जो भी जॉब या जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रोग्राम में इस कंप्यूटर्स को हर एक का टाइम डिक्लेयर हो और उस टाइम के अंदर ही आपकी जो शेड्यूलिंग से जो भी जब स्टेप्स है वो कंप्लीट हो और उसके बाद वो क्या करता है नेक्स्ट स्टेप की ओर वो आगे बढ़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग की, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है आपका। प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोसेस फॉर ईच जॉब स्टेप मीन्स प्रोसेस शेड्यूलिंग ऑर्गेनाइज करता है हर एक टाइप की जो भी जॉब है आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देते हो। मैं जो ये जॉब बार बार कह रहा हूँ, जॉब का मतलब होता है कि आपके द्वारा जो दिया गया इंस्ट्रक्शन होता है या प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी आप प्रोग्राम देते हो उसको हम जॉब बोल रहे हैं। जो फाइल्स आप देते हो इंस्ट्रक्शन देते हो इसे ही हम जॉब बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो जॉब्स होती है आपकी जो है ऑर्गेनाइज किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना है 1 बाय 1, ये सब डिक्लेयर करना, उनकी शेड्यूलिंग करना, उनकी प्रोसेसिंग कैसे होनी है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, उसकी शेड्यूलिंग करना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रोसेसर मैनेजर में कैसे ये प्रोसेस करता है, किस तरह से ये मैनेज करता है प्रोसेसिंग का वर्क। फिर नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की
So now we will go to next topic. The next topic is the operating system as an information manager. So students, in information managers and operating systems ensure the efficiency of input-output operations. By the information management means जो information management के द्वारा जो आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की इफिशियंसी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको इंश्योर करता है. The information management components of operating system provide procedure for storing and accessing the information from external storage device. मीन्स जो आपके इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल स्टोरेज मेमोरी किसी द्वारा जो भी आपके स्टोरेज या जो भी आपके एक्सेसिंग करने होते हैं इंफॉर्मेशन को उनके प्रोसीजर को प्रोवाइड करता है और उनके द्वारा मतलब हर एक कंपोनेंट के द्वारा आप उसकी प्रोसीजर को शेड्यूल करता है, उनकी प्रोवाइड मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. ठीक है, ये भी आपके 3 टाइप्स होते हैं. जो पहला आपका है, इसको इरेज कर दे फिर आपको बताते हैं. तो अगर जो पहला होता है हमारा फिजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं IOCS, इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम. इसी में आप बोल सकते हो PIOS, फिजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, और सेकंड हमारा होता है LIOCS, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम. एंड जो थर्ड होता है हमारा वो होता है फाइल सिस्टम. ये थर्ड हमारा है फाइल सिस्टम. तो पहला हम बात करेंगे PIOCS की, फिजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम की. अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो द फिजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शंस. ये कई सारे फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है, लाइक कैपेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म देयर ऑन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. मीन्स आपके द्वारा जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस दिए जाते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनकी सर्विसेज या उनके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उनको बताता है, मतलब कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है वो चीज शो करता है. हैंडलिंग ऑफ डिवाइसेस एरर कंडीशंस, और जो भी आपके एरर कंडीशंस आती हैं उनको हैंडल करने का काम करता है. एंड इंश्योरिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी, और इंश्योर करता है कि जो इनपुट आउटपुट की एफिशिएंसी कितनी है उस चीज को बताता है. प्रोवाइडिंग बेसिक डिवाइसेस इंडिपेंडेंस, मीन्स आपको बेसिक डिवाइसेस की जो भी इंडिपेंडेंस होती है उनको प्रोवाइड करने का काम करता है ये. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लॉजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम्स की, तो लॉजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम में ये भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनको ये फॉलो करता है. जैसे पहला है एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस ऑफ डेटा एंड स्टोरेज डिवाइसेस. मीन्स आपके जो भी डेटा है उनको किस तरह से एक्सेस करना है, उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उन सब का काम आपका लॉजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम करता है. एंड बेसिक कैपेबिलिटी फॉर फाइल डिफिनेशन, उस फाइल्स की जो भी कैपेबिलिटी होती है डिफिनेशन की कितनी है उसको भी ये बताता है, बेसिक जो भी कैपेबिलिटी होती है. सिलेक्शन ऑफ अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फाइल्स, मीन्स हर एक जो भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइल्स होती है फाइल के लिए उनको सेलेक्ट करना भी इनका काम होता है आपके इंफॉर्मेशन मैनेजर्स का. फिर अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन मैनेजर्स का, फाइल सिस्टम. जो फाइल सिस्टम भी ये भी कई सारे इसके फंक्शंस वर्क करते हैं फाइल सिस्टम में. जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स, मीन्स जब हम किसी फाइल्स को एग्जिट करते हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. कंट्रोल शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स, मीन्स जो भी हम फाइल्स को हम शेयर कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनके कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये सब सारा प्रोटेक्शन कैसे देना, ये सब काम आपका फाइल सिस्टम के द्वारा होता है. वीविंग फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन एंड एक्सेस, हर एक फाइल को कैसे मॉडिफाइड करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, उन्हें एक्सेस करने कैसे करना है, इन सब का काम भी आपके मैनेज करने का काम भी आपका इंफॉर्मेशन मैनेजर के थ्रू होता है. ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपकी ये तीनों टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So now we will go to next topic. The next topic is the commonly used operating system. So students, in this topic we will see different types of operating systems which we use commonly
मीन्स जो कि हम कॉमन यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज करते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक अगर सबसे पहले बात करते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि ये आपकी ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जो कि आपके आप देख रहे हो सामने कि आपकी स्क्रीन क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, जो कि आपके कमांड बेस पे वर्क करती है। फिर नेक्स्ट हमारा है विंडोज होता है। तो विंडोज में भी आप जानते हो, आप लोग यूज भी करते हो और आप देख भी सकते हो कि आप जो भी पर्टिकुलर वर्क करते हो आप सिस्टम पर, कि जो भी क्या होता है कि आपके विंडोज वर्जन होते हैं जो कि आपके दोनों पे वर्क करता है। आपका GUI बेस्ड होता है एंड कमांड लाइन बेस्ड भी होता है, CLI बेस्ड भी। मीन्स आपके कमांड लाइन बेस्ड में जैसे कि मैंने बताया डॉस क्या होता है, सिर्फ कमांड पर वर्क करता है, उसमें हमें कमांड देना होता है। कोई भी फाइल भी क्रिएट करना तो भी हमें कमांड देना है, फाइल सेव करना तो भी हमें कमांड देना होता है। तो ये सब आपके कमांड होते हैं। बट विंडोज में क्या होता है, दोनों फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है, आपको जैसे वर्क करना है आप कर सकते हो। मीन्स आपको कमांड भी होता है एंड ग्राफिकल यूजर बेस होता है। मीन्स आपको शॉर्टकट प्रोवाइड होता है जैसे कि आप हर एक नॉर्मली यूज करते हो। जैसे कि अभी हम दिखाएंगे आपकी इस स्क्रीन पर, तो आप देखोगे यहाँ पर ये सब क्या है आपके, ये पूरे GUI बेस्ड पर है कि अगर हम चाहे ये आपको शॉर्टकट प्रोवाइड है, हम क्लिक करेंगे माउस से तो भी हमारी वो फाइल्स आपकी ओपन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे कमांड नहीं देना किसी फाइल्स को ओपन करने के लिए, बस हमें क्लिक करना है, क्योंकि ये हमें फैसिलिटी GUI बेस्ड पे पूरा ये कंप्लीट है और ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम आसानी से इस पर हम वर्क कर सकें। ठीक है, तो इस तरह कई सारे आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं कि लाइक अगर बात करते हैं हम तो आपके होते हैं विंडोज 98, विंडोज 2000 एंड और भी कई सारे उसके डिफरेंट वर्जन आने लगे हैं आपको। जैसे कि विंडोज आपके पहले अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मिलेनियम आपका आता था एंड विंडोज XP आते थे आपके, विंडोज विस्टा आते था आपका। मीन्स ये सब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड आपके विंडोज 7 आते थे, आप लोगों ने यूज किया होगा। विंडोज 8 हो गया, फिर उसके बाद विंडोज 8.1 आ गया था एंड फिर अब जो आपका आया था विंडोज 10 आ चुका है था आपका। ठीक है, अभी लेटेस्ट में एंड अब जो चल रहा है इसमें विंडोज 11 आ चुका है आपका। ठीक है, तो इस टाइप के आपके इतने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि आपके प्रॉपर मतलब कि आप इस सब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज अपने सिस्टम पर करते हो। ओके, फिर अगर हम बात करेंगे लिनक्स की, अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स क्या होता है स्टूडेंट, लिनक्स भी आपका क्या है, ये दोनों बेस पे भी वर्क करता है। ठीक है, इसमें अगर हम कहेंगे तो लिनक्स इज एक सॉफ्टवेयर है बिल्ट बाय अ कम्युनिटी। इट बिगिन इन 1991 व्हेन प्रोग्रामर लिनियस टॉरवर्ल्ड। में लिनियस सॉफ्टवेयर एक तरह से कि क्या है 1991 में जो प्रोग्रामर थे आपके लिनस टॉरवर्ल्ड थे, उन्होंने इसे डेवलप किया था। और ये भी आपका सेम जैसे आपका विंडोज होता है सेम उसी तरह होता है आपका। ठीक है, ये आपका मीन्स एक सिक्योरिटी पर्पज के लिनक्स होता है, ये दोनों पे वर्क करता है आपका सेम इस तरह। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है बट ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है। और विंडोज में क्या होता है कि हमें वहां पे अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इलीगल यूज करो तो बात की बात है, अगर हम लीगली लेंगे उस सॉफ्टवेयर को तो वो क्या होता है हमें कॉस्ट हमें देना पड़ता है। बट लिनक्स के लिए हमें कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सेम इस तरह यूनिक्स आपका होता है, यूनिक्स भी क्या होता है कमांड बेस पे भी आपका वर्क करता है ये भी। ठीक है, इसको 1969 में डेवलप किया गया था। ठीक है, AT&T बेल्स लैबोरेटरीज में से डेवलप किया गया था। ठीक, ये भी एक तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। फिर अगर हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे कि आप लोग अपना मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल आपका क्या है, इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस लाइक अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ये जो आपके जो भी स्मार्टफोन होते हैं, टैबलेट होते हैं, उनको ये क्या करता है मैनेज करने का काम करता है, कैसे उनको ऑपरेट करने का काम करता है। It extends the features of the normal operating system for personal computers so as it includes touch screen, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, mobile navigation, camera, music player, many more। Means आप ये सब इसमें फैसिलिटी देख सकते हो कि कई सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं आपकी मोबाइल्स में। टच स्क्रीन होता है आपका, ठीक है, आपके ब्लूटूथ वाईफाई की फैसिलिटी होती है, GPS मोबाइल सिस्टम की फैसिलिटी होती है, आपकी कैमरे की फैसिलिटी होती है, म्यूजिक प्लेयर की फैसिलिटी है, और भी कई सारे फीचर्स क्या होते हैं आपके मोबाइल सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और ये चैप्टर्स आपका यहाँ पे ही फिनिश होता है आपका। ओके स्टूडेंट, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में और नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।